Welcome to Prime Debate. For some, their behavior is unnatural, but for them, it's how nature meant them to be. Homosexuality, however, remains a taboo and it's not a cultural issue. Gays face problems of unacceptability around the world, though the degree varies. In India, perhaps the opposition is more on your face and verbal. What is it about homosexuality that it creates an instant dislike and outrage? Well, that's what we're going to discuss in Prime Debate. Union Health Minister Ghulam Nabi Azad recently stated that homosexuality was a disease and not good for Indian society. The statement evoked strong reactions from not only gay rights activists but sections of civil society too. In the year 2009, the Delhi High Court decriminalized homosexuality. Gay couples rejoiced throughout the state. The ruling meant afforded to gay and lesbian Indian citizens equal rights as their heterosexual counterparts. Many gay couples a little further took the freedom of tying nuptials across the country. Almost 2 years later, the Union Health Minister Ghulam Nabi Azad in a way has contradicted the order. बदकिस्मती से दुनिया में भी और ये बीमारी हमारे देश में भी आ गई, जहां आदमी आदमी के साथ सेक्स करता, जो कि बिल्कुल अननेचुरल है, नहीं होना चाहिए लेकिन है. Going by the intended meaning meant that anything unnatural was downright condemnable. However, the gay community and their sympathizers say such regressive forces were taking the gay agenda a step backwards. Just seems like every time you're able to take one step forward, you're put back 10 steps, and it's becoming tiring to carry on like this. And it's not like it's a major huge problem for this country if we acknowledge the fact that gay people are part of our milieu, that gay people should have the same rights as everybody else in this country. I mean, to me, that's what a democracy is all about, no? Not this nonsensical behavior, the statements that are put out periodically by some minister or the other. We as sexual minority movement, we demand our Honorable Union Health Minister resignation in immediate, and he has to resign. He is unfit to be as a health minister without concern and without knowing the information of sexual minorities, and he can't do such a blind statement saying that homosexuality is disease and it's unnatural. For critics, the man responsible for the physical and mental well-being of the entire nation had views which many believe smacked of backwardness and ignorance. In the 21st century, when gay marriage is steadily gaining credence, India will certainly not wish to be identified with such crassly xenophobic sentiments. And to discuss this issue, we have in our studios Avnish Jolly, an AIDS activist, Gurminder Singh, former Additional Advocate General Punjab, Pawan Gupta, President Shiv Sena Hindustan, and Tina, a representative of Saksham, a CBO. Well, thank you all for being with us in our studio. And Avnish, if I do begin with you, what do you make of Ghulam Nabi Azad's statement? You know, that's the most obvious thing that we can begin with. मैडम, पिछले 20 साल से मैं HIV एड्स की सही जानकारी और लोग इससे कैसे बचें इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ. तो हम चाहते हैं कि लोगों को इसकी सही जानकारी हो और जिन रूट से ये फैलता है उन पे हम चेक लगा सकें. इसी संदर्भ में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत CBOs बनाई गई और MSM और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर काम होना शुरू हुआ IVW यूजर्स के साथ. तो अजीब लगता है जब सडनली ये आता है कि ये एक बीमारी है. उन माता पिता का क्या होगा जिनको हमने कन्विंस किया, जिनके बच्चे इस तरह के बिहेवियर में इन्वॉल्व थे, कि इनकी काउंसलिंग कीजिए और अगर इन्हें STD या HIV है तो इनका ट्रीटमेंट कीजिए. और इसके साथ साथ जो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन इसके साथ जुड़ा हुआ है वो क्षण भर में खत्म हो गया. It's a huge setback at the moment. आप पता नहीं कि हुआ क्या. दिस इज अ पब्लिक हेल्थ इशू. हाँ जी. सामाजिक समस्या है. हाँ. सामाजिक सेहत की समस्या है. और कैसे हम दोबारा ये सब बिल्ड करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि HIV एड्स के सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो हमारे देश में हैं और वैसे भी राइज कर रहा है. इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही प्रयास किया जा रहा है और हाई रिस्क ग्रुप में हमारा चंडीगढ़ और पंजाब दोनों आते हैं, जो रिसेंट रिपोर्ट आई है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की. तो कैसे काम करें हम. तो ये एक सामाजिक समस्या है, आप ये कहेंगे? 3 तरह के होमोसेक्सुअल्स होते हैं. एक तो वो जो
एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, कैन कहते हैं कि बाय बर्थ पैदा हुए, जन्म में से ही उनके अंदर ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उनका व्यवहार ऐसा होता है। दूसरा जिनका अब्यूज हुआ। तीसरा जो नौकरी ना मिलने के कारण या पैसा कमाने की होड़ में इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो 3 चीजें हैं और कैसे काम किया जाए इनके ऊपर, ये सबसे बड़ा इशू है। और सडनली ये सब कुछ खत्म हो गया। Gurvinder, what are your views on this? On generally gays, do you think that we would say that it's an unnatural thing, it's something that it's behavioral? What are your views on that? If you actually go by the definition given to it by law under the IPC, it does talk of something which is against the order of nature, and it also goes ahead to say that this unnatural sex either with men, with women or with animals is punishable under the code of Indian Penal Code. But the issue is, you know, as Avnish rightly pointed out, that there are people who are born with this tendency and who are born with this nature, and they have a natural tendency to be attracted to people of the same sex. So when the tendency is natural and not inculcated or cultivated, you can't really call it unnatural. But I guess it is because of the sheer numbers, because of the minority of the people who are given to such tendency, that the issue has not really been allowed to come up, and the fact that it does not confirm with the social behavior or the social set pattern which people are given to think and which is drilled into their minds right from birth. That is the reason which is causing a lot of confusion in accepting these feelings, and which has happened over a period of time. I guess in this century we've seen a lot of countries decriminalizing homosexuality, which means that a lot of thought has gone into it, and there is a progress in the area. And otherwise I feel it is an awareness issue. Right. I mean, personally speaking, I think it is an issue which we all need to educate ourselves, and Mr. Azad's statement as he made it is definitely his personal view. I'm sure it is not the view of the party or the country or the people he represents as a politician. But he's talking on an exactly. When you speak from a public forum and when you hold a public post, a lot of responsibility is upon you, because a lot of people look up to you and take your opinions as a general mass opinion, which I'm sure to some extent is right, because it is an opinion which is a mass opinion. If you look across the board, majority of people think the way he thinks. Yes. So the idea is to change the thought. I'm going to ask Mr. Pawan Gupta. आपको क्या लगता है homosexuality एक सामाजिक समस्या है, एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि it's a most natural phenomenon? आपके व्यूज क्या हैं? मैं समझता हूँ कि सामाजिक समस्या तो है ही है। इसके साथ जो गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा, वो मैं नहीं समझता कि उन्होंने व्यक्तिगत कहा, एक स्वास्थ्य मंत्री के नाते और देश के कल्चर को समझते हुए देश में इसकी मानने की संभावना बहुत ही कम है। आप कितनी भी डिस्कशन कर लीजिए, समाज इसको कतई मानने को तैयार नहीं है, और उनके जो विचार थे वो समाज की जो जनरल विचारधारा उसको उन्होंने व्यक्त किया। लेकिन क्यों, आपको क्यों लगता है कि नहीं, हम समझते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि कुदरती तौर पे भी जिनके जन्मजात से ऐसी कोई बीमारी है, तो जन्मजात से बहुत सारी बीमारियां होती हैं और उसके इलाज किए जाते हैं। किसी जन्म से कोई बीमारी है तो उसको छोड़ नहीं दिया जाता। लेकिन जो लोग आके शौकिया तौर पे हो गए, अब किसी को नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने ऐसी बातें कर ली, तो किसी को नौकरी नहीं मिली तो चोरी करने लग जाएगा, डकैती मारने लग जाएगा। तो ये सारी बातों को तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप नहीं, आपने अपने डिस्कशन में कहा कि कईयों को नौकरी नहीं मिली, काम नहीं मिला, धंधा नहीं मिला, आर्थिक समस्या के कारण उन्होंने बहुत सारे लोग जो कहता है कि उस तरह की प्रकृति के साथ पैदा होते हैं। हाँ, तो पैदा होते हैं तो उनकी बीमारी का इलाज होगा। बहुत सारे लोग अपंग पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के हाथ में छेद होता है, उसके लिए पॉलिसी बनेगी, उसके लिए इलाज पॉलिसी बनेगी, उसके लिए उनको रेक्टिफाई करने के लिए जो सोसाइटी है काम करेगी, और जो इसके जरिए जो जन्मजात से हैं उनकी बीमारी दूर करने के लिए सोसाइटी काम करे, नोबल पर्सन काम करें। लेकिन जो जन्मजात से नहीं है, वो आदतन हो गए, उसके लिए समाज कहां स्वीकार? वो एक इंडिविजुअल है जो जिस आप हैंडीकैप की बात करते हैं, इसमें उस समाज से जुड़ा हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा रूट है HIV एड्स के फैलने का। और जो पिछले आंकड़े आए हैं, मैंने पहले भी बताया कि पंजाब और चंडीगढ़ में HIV एड्स बड़ा है। नहीं, तो इनको रोकने के लिए समाज या सोसाइटी अपना दायित्व पूरा कर सकती है, लेकिन उनको अधिकार थोड़ी दिया जा सकता है कि आप मैं अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं,
उनको जागरूक करने की बात Why are we treating it like a handicap? Why are we treating it like a disease? Like a And disease. Why are we treating yes. it like something which Okay, has not been treated? let's ask Tina. Yes. Let's just go to Tina. Tina, आप हमें बताइए कि आपको कब अवेयरनेस हुई कि आप आम लोगों की तरह नहीं है? You're now a homosexual or a gay like everybody puts it. बचपन से ही। कितनी उम्र थी? मैम वैसे तो मेरे को शुरू से ही लड़कियों वाली आदतें थी, लड़कियों के साथ खेलना, लड़कियों जैसे ड्रेसेस पाना। मेरे को ये पैदाइशी पैदा हुआ था जिस टाइम मैं, मुझे वैसे ही लगता था। और क्या कहते हैं, जब ये कई लोग कहते हैं कि ये खुद बनते हैं, मैम नहीं, जब आपने खुद सोचा कि हाँ यू हैव द गर्ल्स इंस्टिंक्ट ज्यादा आप में है, तो आपके पेरेंट्स ने क्या कहा उस टाइम? मैम बल्कि मेरे पेरेंट्स ही मुझे फ्रॉक डालने के लिए देते थे। वो मुझे कहते थे कि ये मेरी बेटी है। हमें घर का काम कई बार कहते थे, जा प्यार से बोलते थे, जा बेटी झाड़ू मार दे, बर्तन धो दे, प्यार से कहते। और आपको ये सब काम करने आपका शौक था? ये शुरू से ही मेरा शौक था। और जब आप स्कूल जाते थे, आपके फ्रेंड्स उस टाइम क्या कहते थे? उस टाइम मेरे फ्रेंड्स यही बोलते थे कि लड़कियों की तरह बोलता है, लड़कियों की तरह चलता है। बट मैम मैं लड़कों से इतना बात नहीं करता था। एक्चुअली मैं लड़कियों से ही ज्यादा बात करता था, क्योंकि मुझे लड़के उस टाइम में गलत बोलते थे। इस करके मैम फिर मैं लड़कों से इतना, बल्कि हम बैठते थे स्कूल में इकट्ठे, पर मैं उनसे इतना बात नहीं करता था। बस हाँ, एक था जो मेरी फीलिंग समझता था। कई कहते कि हाँ, जब किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, चाहे वो लंगड़ा है, चाहे वो लूल्हा है, चाहे वो अंधा है, कभी किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, ये पैदाइशी ही है। सो फाइनली आपको एक्सेप्टेंस कभी मिली? आपको लगा कि हाँ अब, बिकॉज समाज में से तो आई डोंट थिंक, जब आप बड़े हुए, जब आप और थोड़ा आपने कहने लग गए कि यस आई एम डिफरेंट, तो समाज से आपको क्या प्रॉब्लम्स आई? मैम समाज यही कहते हैं कि ये छक्का, ऐसे मैम निकलना, तो कोई कहता छक्का, कोई कहता बोंडू। मैम बहुत गलत वर्ड यूज करते हैं। पर मैम हम कईयों को तो जवाब दे देते हैं, पर मैम हमेशा ऐसे कई लोग बोलते हैं, पर ये गलत है मैम। ये हम नेचुरली हम ऐसे है, ये पब्लिक का ये हक नहीं बनता कि हमें ऐसे गलत बोले। उनका बिल्कुल हक नहीं बनता। तो अब आप अपना फ्यूचर कैसे समझते हो? आपको जॉब्स मिलने आसान है? आपको जब हम जॉब लेने जाते हैं, जॉब हमें दिक्कत पड़ती है जॉब लेने में, और कई बार जॉब मिल भी जाती है तो वहां हमारी सैलरी रोक लेते हैं। रीजन क्या होता है आमतौर पर? ये कि कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। हम कुछ बोलेंगे तो उल्टा हमारे को ही गलत ठहराया जाएगा। So Praveen, now he is a person who's saying कि मैं तो नेचुरली ही बचपन से ही ऐसा हूँ। So what आप क्या इसका सोल्यूशन आप क्या? मैं ये समझता हूँ कि जब इनका पालन पोषण हुआ, जब इनके माता पिता इनको ट्रीट कर रहे थे, वहाँ कुछ गलत हो गया। और दूसरी बात, जो हमारा इतिहास बताता है कि जब महाभारत में अर्जुन जी का कुछ पीरियड आया ऐसा, तो ये इन्होंने जो कहा भी उस हिसाब से ही काम मिला उनको, नर्तकी का काम मिला, या आप हमारी राजकुमारी को नाच गाने के लिए ट्रेन करेंगे। तो जब आपकी जीवन शैली में बदलाव आ जाएगा, ट्रेंड बदल जाएगा, तो आपको वर्क भी उसके हिसाब से ही मिलेगा। और जहां तक समाज के मानने का, समाज ने कभी भी इसको स्वीकारता नहीं दिया, बहुत दूर है अभी समाज हमारा उससे। और जो समाज का इनके प्रति व्यवहार है, उसमें कहीं ना कहीं, जैसे इन्होंने कहा कि जो कुदरत की ओर से हो जाए, बाय बर्थ हो जाए, तो उसमें सुधार करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने काम करे। तो इनका तो बाय बर्थ ही है ना? हाँ, तो मैंने पहले कहा कि उसके साथ तो समाज को अपना दायित्व पूरा करना चाहिए। जो दो चीजें और आ गई, शौकिया बन गए, देखा देखी चल पड़ा काम, तो उनके नंबर चाहे बढ़ जाएं, वो 6 करोड़ हो जाएं या 20 करोड़ हो जाएं, समाज के लिए तो एक बहुत बड़ा भयानक खतरा उपस्थित हो गया। अब जो बाय बर्थ है उनके साथ तो समाज जा सकता है कि इनका इलाज किया जाए, इनके लिए कुछ अच्छा काम किया जाए। अब वो जो इन्होंने कहा HIV का बढ़ गया, मैं ये मानता हूं जब आप नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हो, नेचर के विपरीत जाते हो, तो हमें जानवरों से कुछ सीख लेना चाहिए।